Good morning students. Today we are going to start with the second part of the first topic, that is corporate introduction to corporate finance. See that on the first slide it is given capital requirements 1.3, that is the third subtopic of the chapter. When business is newly established by the proprietor, he has to decide what would be the sources of funds that company needs in the prior stages of business. So when the business needs the capital requirement, so at that time proprietor has to collect from the different resources the amount of capital. So in prior stages he needs much sources of funds that he has to decide, that we had understood in previous session also. So this capital requirement, whether it is of working capital or fixed capital, that how to be decided and how it is to be decided, how this plan works by the finance manager, that is given. And for that purpose entrepreneur itself can work on it, and finance manager is also suggesting to him whatever the decisions have to be taken by the entrepreneur means also owner of the business, that you must understand. Entrepreneur how to decide the amount of fixed capital and working capital. तो इन दोनों चीज़ों का क्या मतलब है? फिक्स कैपिटल मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, क्या फैक्टर्स इन पे इम्पैक्ट करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. सी द फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल विच इज़ यूज्ड फॉर बाइंग फिक्स्ड एसेट्स. मतलब जो ब्रॉड बिग अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, बड़े बड़े एक्सपेंसेस जिस पे होते हैं फिक्स्ड एसेट्स पे, लाइक बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस. सो फॉर विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट टाइप ऑफ एसेट्स आर कॉल्ड एज फिक्स्ड एसेट. मतलब इसी का एक डेफिनेशन यहाँ पे मैंने दिया है. फिक्स्ड कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर बाइंग फिक्स्ड एसेट्स विच आर यूज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन बिजनेस. ये डेफिनेशन आपको ठीक तरह से लर्न करना है. फिक्स कैपिटल इन शॉर्ट मतलब क्या है, उस एसेट्स को परचेस करना, अमाउंट ऑफ कैपिटल उस एसेट्स में इन्वेस्ट करना कि जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बिजनेस में रहने वाले हैं. The assets purchased are used for a longer period and the assets are not meant for resale purpose. ये जो assets हम परचेस करने वाले, जो फिक्स कैपिटल हम क्रिएट करने वाले हैं, लाइक फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं है, ये इट इज़ फॉर यूटिलाइजेशन पर्पज़ एंड इट स्टेज इन द बिजनेस परमानेंटली. Generally, these assets are purchased at the time of establishment of new company, new expansion, when expansion is there, and development of existing business and replacement of equipments. मतलब क्या, जो इक्विपमेंट्स है, जो एसेट्स है, उनके रिप्लेसमेंट के लिए, बिजनेस के एक्सपांशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, फॉर दीज टाइप्स ऑफ क्रिएटिंग एसेट्स द बिजनेस हैव टू create this capital, raise this capital, which is called as fixed capital. Investment in all these type of amount of big expenditure of longer period is called as fixed capital. They obtain the funds through the owned capital and borrowed capital. ये fixed capital कहाँ से create हो जाता है, तो ये fixed capital हमें through the owned capital और borrowed capital से मिलता है. मतलब कौन से owned capital, for example issue of shares, एंड कौन से borrowed capital, debentures, bonds and long term loans. These are sources for it. Next is the promoters of the company collects the resources when they start business, which consider all the fixed assets, all these fixed assets. So जब बिजनेस कंपनी के प्रोमोटर्स इनिशियली बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं, तब वो ये सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं. They consider all these fixed assets. They consider the machineries, they consider the land and price of land, cost of construction, of building and machineries, and other initial expenses which are necessary to create that company at the time of establishment. They think over it and they make the expenditure on all these assets. सो प्रोमोटर्स को इसके बारे में सोचना पड़ता है. इनिशियल स्टेज में ये हमें समझ में आया कि फिक्स कैपिटल कब क्रिएट होता है, इनिशियल स्टेज में इसका रिक्वायरमेंट होता है. तो ये कैपिटल क्रिएट करने के लिए कौन से फैक्टर्स विच अफेक्ट on these fixed capital requirement
दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। मतलब किस फैक्टर्स के लिए, किस फिक्स कैपिटल क्रिएट करने के लिए कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, कौन से फैक्टर्स रीजन होते हैं फॉर क्रिएटिंग दैट फिक्स कैपिटल। फर्स्ट इज अ नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब कि बिजनेस इज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग काइंड और सर्विस रेंडरिंग, दैट ऑल्सो हैव टू बी अंडरस्टूड। अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा तो फिक्स एसेट बहुत अमाउंट की लगेगी, और अगर सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए होगा तो उसका एस्टैब्लिशमेंट कम अमाउंट की फिक्स कैपिटल में होगा, मतलब उसके लिए जो एसेट्स है वो कम चाहिए होगी। सर्विस रेंडरिंग जैसे आप सोचते हो कि टूरिज्म का बिजनेस है सपोज टू बी, व्हाट इट नीड्स ऑफिस एंड सम व्हीकल्स, बट इफ इट इज ऑफ बिजनेस of manufacturing process, it requires huge plant, huge land of big amount for purchasing the land, acquiring that particular land, machineries. So for that purpose there is a huge amount is required for manufacturing units, मतलब जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, और जहाँ पे सर्विस रेंडरिंग होता है वहाँ पे उस नेचर के बिजनेस के लिए फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। देन साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की साइज अगर बहुत बड़ी होगी तो फिक्स कैपिटल का अमाउंट ऑब्वियसली कैसे लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर बिजनेस का साइज कम होगा तो ऑटोमेटिकली द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, फिक्स कैपिटल इज लेस अमाउंट। Suppose it is locally situated, then less amount they can survive their business and run their business in a proper manner. Scope of business, it is a similar one. business का scope कितना बड़ा है कितना छोटा है ये आपको वहाँ उस पे डिपेंडेंट रहता है कि फिक्स कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है। एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, अगर किसी फर्म ने एसेट्स को लीज पे, मतलब मशीनरीज के लिए या फिर बिल्डिंग के लिए या फिर किसी लैंड के लिए लीज या फिर रेंट पे लिया है, सो दैट टाइम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट इनिशियली नहीं होगी, क्योंकि लीज ऐसा चीज़ है या फिर रेंट ऐसा चीज़ है कि जहाँ पे आपको लेस अमाउंट से उस ओनर को पे ऑफ करना पड़ता है, मतलब वो एसेट परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन लीज बेसिस वी आर यूटिलाइजिंग दैट एसेट, at the same time you doesn't require to make a big expenditure, मतलब बहुत बड़ा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, स्मॉल अमाउंट में ही उसका मशीनरीज का यूज़ हम कर सकते हैं। ओनर वही रहेगा पर हम उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, बस उसको लीज की अमाउंट पे ऑफ करेंगे। नेक्स्ट इज अ फिफ्थ, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अब हमने इस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया और जो रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट है, रिमेनिंग फिनिशिंग जो है उस पर्टिकुलर जॉब का किसी दूसरे को उसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो वो उसका फिनिशिंग करेगा। एट दैट टाइम वी आर ओनली रिक्वायर्ड टू मेक अ सेमी फिनिश्ड गुड्स, सो एट दैट टाइम सब कॉन्ट्रैक्टिंग इट अरेंजमेंट ऑफ दिस सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड मेकिंग अ फिनिश्ड गुड्स, there is a less amount of machinery is required और fixed capital required। मतलब इनिशियल स्टेज के लिए, इनिशियल प्रोडक्शन के लिए ही हमें ये फिक्स्ड एसेट चाहिए, ज़्यादा आगे की प्रोसेस के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ इज एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स, अगर आप ओल्ड एसेट्स का एक्विजिशन करते हो एट दैट टाइम फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि न्यू एसेट परचेस के लिए बहुत अमाउंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ऑन कंसेशनल रेट, कंसेशनल रेट से अगर परचेस करते हो या फिर किसी गवर्नमेंट से आपको हेल्प मिलता है किसी प्रोजेक्ट के लिए विच इज यूजफुल फॉर द सोसाइटी, सो एट दैट टाइम एट द कंसेशनल रेट इफ यू आर यूटिलाइजिंग दैट एसेट, परचेसिंग दैट एसेट्स, creating that asset, so fixed capital required for it is very less। नंबर 8 इज इंटरनेशनल कंडीशंस, अगर आपको ऐसे लगता है कि इंटरनेशनली द रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज आर नॉट प्रॉपर and we are going to face a war situation in further future, so we will think over it that the capital required for the business should be less amount।
हमें बिजनेस कम कर देना चाहिए, सो कैपिटल रिक्वायरमेंट हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे. वी विल स्टार्ट टू सेल आउट बिजनेस एंड वी विल स्टार्ट विद द अनदर डोमेस्टिक टाइप ऑफ बिजनेस. So that is also one of the situation on international matters. Next is a ninth, trend in economy. Economy का trend कैसे change हो रहा है, according to that whether it is of manufacturing and service industries, whether that particular production line is getting demoralized or it is a getting extension also. So at that time the business can be flourished or business can be getting down. So at that time factors affecting for this factor is also affecting on the fixed capital requirement. अगर बिजनेस कम हो रहा है, बिजनेस से आपको सेल्स के लिए ग्रिप नहीं मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली यू विल थिंक ओवर दैट कि आप कमिंग फ्यूचर में बिजनेस बंद हो जाएगा, क्लोज डाउन होगा, तो ऑटोमेटिकली आप उसकी जो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कम कर दोगे. यू विल स्टार्ट विद द अनदर लाइन. नंबर 10 इज पॉपुलेशन ट्रेंड. कि पॉपुलेशन ट्रेंड भी ये डिसाइड करता है कि आपके प्रोडक्ट्स कितनी डिमांड उसको होनी चाहिए, कितना यूज़ उसका होना चाहिए. इफ़ द पॉपुलेशन ट्रेंडिंग टूवर्ड्स योर प्रोडक्ट, देयर इफ इट इज गिविंग priority to your preference to your product, then only the required amount of sale can be made, and also we can give the input for it and fixed capital can be invested. But if it is that कि आपका पॉपुलेशन ट्रेंड इसके लिए लेस है, मतलब उसके लिए आपका प्रेफरेंस कम है, सो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट टू डी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. So it will be getting less fixed capital for that type of project. तो पॉपुलेशन ट्रेंड में ये भी डिसाइड होता है कि बिजनेस स्मॉल कंडीशंस में स्टार्ट किया जाए या फिर बिग कंडीशन में स्टार्ट किया जाए. अगर वो बिग नेचर का होगा, बिग स्कोप उसका होगा, साइज उसका होगा, तो ऑटोमेटिकली यू विल हैव टू रिक्वायर टू कलेक्ट मोर फिक्स कैपिटल फॉर इट, दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट. और अगर नहीं होगा छोटे नेचर के लिए, सोफिस्टिकेटेड बिजनेस, जैसे हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटर स्मॉल नेचर का ही बिजनेस करता है, बिग नेचर का नहीं करता है. सो इट इज़ स्केल डिसाइडेड. एंड नंबर 11 कंज्यूमर प्रेफरेंस. कंज्यूमर का प्रेफरेंस आपके लिए सिमिलर पॉइंट इट इज़ विच इज़ ऑल्सो कवर्ड अंडर द पॉपुलेशन ट्रेंड. इफ कंज्यूमर्स आर गिविंग प्रेफरेंस टू योर प्रोडक्ट्स, automatically you have to invest more and more fixed capital, and you have to start again next product line, moreover you have to invest in that project. Number 12 is competitive factor. अगर competition बहुत बड़ा है, so at that time you have to invest more in that, more fixed capital in that particular project. You have to adopt advanced technology so that the business can be take more particularly more required capital can be provided to that particular project. So competitive factor एक important चीज़ है कि जहाँ पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा competition बढ़ रहा है, so automatically you have to make prove your product that will give the more and more requirements, fulfill the needs of the people. So social requirements also have to be fulfilled so that the product can survive. Otherwise the business will be getting down, and if it is getting down then it will be suffering from the losses. So competitive nature एक important factor यहाँ पे बताया गया है. Next is a working capital. Working capital is the capital which is used to carry out the day-to-day business activities. मतलब जो कैपिटल रिक्वायर्ड है डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, उस कैपिटल को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल. मतलब फॉर सपोज टू बी फॉर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्ट, then paying of electricity bills, commission, salaries, like that wages, like that expenses can be mitigated थ्रू दिस वर्किंग कैपिटल. मतलब जो बिजनेस चलाने के लिए करंटली यूटिलाइज किया जाता है और जो बार बार बिजनेस में रोटेट होता रहता है, उसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल. सो दिस वर्किंग कैपिटल इज वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ दिस कॉर्पोरेट फाइनेंस. देयर इज अ डेफिनेशन गिवन, ये आपको ध्यान में रखना है. वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल
which is used to carry out the day to day business activities. हर रोज की एक्टिविटीज जिस कैपिटल से कंडक्ट की जाती है, जिसके थ्रू की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? वर्किंग कैपिटल. तो इसका एक इक्वेशन भी एक जेस्टेनबर्ग ने दिया है. क्या बोला है उसने? जेस्टेनबर्ग डिफाइंस नेट वर्किंग कैपिटल एज एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटीज. अभी इसको तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि करंट एसेट्स होती क्या है, इन करंट लायबिलिटीज होती क्या है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ. करंट एसेट्स लाइक डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, like these current assets, investment is there, short term investment if it is there. So this asset total, current asset total is more than bills payable, creditors, like that. So that excess amount of this over the current liabilities is called as what? Net working capital. ये किसने कहा है? नेट वर्किंग कैपिटल किसने कहा है? इसे जेस्टेनबर्ग ने कहा है. एंड in general nature we are calling it working capital. Jestenberg refused to define it as a working capital. This equation, ये जो इक्वेशन है इसे नेट वर्किंग कैपिटल कहा है जेस्टेनबर्ग ने. वो रिफ्यूज़ करता है किसको? कि इसे हमें वर्किंग कैपिटल नहीं कहना चाहिए, इसे हमें कहना चाहिए नेट वर्किंग कैपिटल. ओके, सो again he is saying that he does not consider this as the working capital, but he prefer to call it as circulating capital. उसे क्या कहना चाहता है वो? सर्कुलेटिंग, क्योंकि ये सर्कुलेट होते जाते हैं कंपनी में, और it is getting out, it is also getting in. So it is a current money which is getting out from the business, and at the same it is its flow of the money is getting in. And next slide is telling you the definition, again one of the working capital. J.S. Mill is defining it. The sum of current assets is working capital. मतलब सारे करंट एसेट्स की टोटल वो क्या कहता है? उसे वर्किंग कैपिटल. बट इट रेफर्स टू एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. हाँ, वो इसे क्या कहता है जेस मिल की? एज अ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी करंट लायबिलिटीज को इग्नोर करती है. द वर्किंग कैपिटल इज मिटिगेटिंग द फॉलोइंग एक्सपेंसेस. तो ये जो वर्किंग कैपिटल है कौन से एक्सपेंसेस के लिए होता है, या फिर ये वर्किंग कैपिटल किस एलिमेंट से फॉर्म हो सकता है? फर्स्ट इज फॉर बिल्डिंग अप इन्वेंटरीज, मीन्स फॉर परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल. बिल्डिंग अप, यहाँ पे आप ये ना सोचना कि बिल्डिंग अप मतलब बिल्डिंग तैयार करें, नहीं. बिल्डिंग अप ऑफ इन्वेंटरीज. इन्वेंटरीज का मतलब क्या है? स्टॉक, दैट इज अ रॉ मटेरियल. देन द फाइनेंशियल रिसीवेबल्स, मतलब जैसे मैंने कहा डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये अकाउंट रिसीवेबल है. इसका भी उपयोग वर्किंग कैपिटल डिफाइन करने में होता है. नंबर 3 इज फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. मतलब जो डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जो रूटीन एक्सपेंसेस है, जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में द करेक्ट लोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस आई एम टेलिंग यू, वेयर इट इज पोस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, वो सारे जो एक्सपेंसेस है उनको आप ध्यान में रखना. वही एक्सपेंसेस को मिटिगेट करने के लिए जो अमाउंट पे किया जाता है वो कहाँ से पे किया जाता है? वर्किंग कैपिटल से पे किया जाता है. सो इट इज मिटिगेटिंग दैट ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द विच आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द production process, like factory administrative expenses, selling and distribution expenses, etc. So that is all for today, and we are going to conclude this topic, and not topic, we are going to listen the other factors on this working capital also, which are making impact on this, and we had seen just factors affecting on fixed capital requirement. We will see in the next lecture the factors affecting on working capital requirement. Thank you for watching this video.